Good morning, students. Once again, welcome to the science online class. Students, today we are going to start new chapter of science, that is chapter number 3, synthetic fibers and plastic. And this chapter is not tough for you. Few things you have studied earlier last year. So, last year we have seen fibers are of two types, that is natural and man-made. Natural, animal and plant. You have seen last year. This time we will go further with synthetic. So in this chapter we're gonna start about introduction. We're gonna study about synthetic fibers, types and characteristics of synthetic fibers, plastics, uses of plastic, characteristics of plastic and plastics of environment. In this session we'll cover few topics regarding synthetic fiber. So first question is, what are synthetic fiber? Synthetic means what? Fibers which is made by human being. You can see over here the fiber which is made by human being in laboratory. Laboratory में by doing some experiment and by using some chemicals जो fiber बनता है that is called synthetic fiber, और we can say man made fiber क्योंकि वो human being के थ्रू बनता है. Okay, let's take example. आपको एक यहाँ पे necklace दिखता है. This necklace is attached by different stones. Now see, one stone is here. ये जो one stone है, ये stone को बोलते हैं मोनोमर. क्या बोलते हैं उसको? That is called मोनोमर. मोनोमर means single unit. इसी तरह से ये जो entire necklace है, that is fixed with one chain. So one stone is attached to one to other, और ऐसे करते करते it makes the entire chain. तो ये पूरी जो chain है that is called polymer. क्या बोलते हैं उसको? That is polymer. One unit हो तो monomer, और more than one हो, there are so many. You can see आप जो necklace है, there are so many units are fixed together and makes a one chain that is called polymer. So ये जो synthetic fiber है that is look like this entire necklace. See, what is polymer? The word polymer comes from two Greek word. Poly, poly का मतलब होता है many, जो एक से ज़्यादा, और मर का मतलब होता है पार्ट या तो यूनिट. सी नेकलेस दिया, एक जो स्टोन है इट इज कॉल्ड वन पार्ट, या और वी कैन से वन यूनिट. ऐसा साइमल्टेनियसली पूरी चेन बनती है दैट इज मैनी. तो ये हो गया पॉलीमर. गॉट इट स्टूडेंट्स? दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर. नाउ नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सो यू कैन सी rayon, nylon, polyester and acrylic. I am pretty sure you would have heard about this all names in your life. First we'll study rayon. अब ये जो rayon है that is not silk, that is only artificial silk. रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते. इट इज़ लुक लाइक सिल्क बट नॉट सिल्क, क्योंकि सिल्क है वो प्रीटी एक्सपेंसिव है. ये थोड़ा चीपर है एज कम्पेयर टू सिल्क. रेयन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प. अब जो वुड पल्प है उसके अंदर बाय डूइंग सम केमिकल प्रोसेस रेयन बनाया जाता है. इसका यूजेस कहाँ पे होता है? तो यूजेस हम होम अप्लायंसेस हम देखते हैं. वी हैव सीन कारपेट, क्लोथ्स एंड बेडशीट. तो उसका जो मटेरियल होता है विच इज़ मेड अप फ्रॉम रेयन. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड इज नायलॉन. यस स्टूडेंट्स, ये नाम तो डेफिनेटली आपने सुना होगा. नायलॉन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रॉक क्लाइंबिंग. क्यों रॉक क्लाइंबिंग? क्योंकि जो नायलॉन थ्रेड होता है दैट इज़ मच 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 स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर. दैट्स वाई इसको रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करते. इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. नाउ यू वुड हैव रेज योर क्वेश्चन कि ये कोल, वाटर, एयर नेचुरली तो है, बट इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसमें से नायलॉन को बनाया जाता है. नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू स्टील वायर एंड अदर थिंग्स. इट इज़ इलास्टिक एंड लाइट. कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ वेरी इजी टू वॉश. नायलॉन को आप यू वुड हैव टेकन योर हैंड, आप उसको ईजिली वॉश कर सकते हो. वो सॉक्स में यूज़ होता है. इट कैन यूज इन रूब्स, अवर टूथब्रश,
car sheets, etc. Got it, students? Third is polyester. Polyester words comes from polymer, right? अब ये जो पोलिस्टर है ये फैब्रिक बहुत ही ईजी है बिकॉज इट डज नॉट रिंकल. रिंकल का मतलब क्या होता है? इसको आपको प्रेस नहीं करना पड़ता. स्टूडेंट्स, व्हेन यू गोइंग टू द स्कूल, अब आपका जो कॉटन शेड होता है बिफोर गोइंग टू स्कूल यू आर जस्ट प्रेसिंग है, आप उसको आयरन कर दो. गॉट इट? बट इट डजंट हैपन विथ पोलिएस्टर. पोलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर, बट आप उसको नेचुरल फाइबर से कॉम्बिनेशन से यू कैन मेक समथिंग न्यू. सी हियर पॉलीकोट. अब ये जो पॉलीकोट है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोलिएस्टर एंड कॉटन. अब कॉटन हो गया नेचुरल, पोलिएस्टर सिंथेटिक, दोनों के मिक्सअप से बनता है पॉलीकोट. सेम फॉर पॉलीवूल. पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पोलिएस्टर एंड वूल. इज दैट क्लियर? सी नाउ, ये जो रिंकल के अंदर होता है इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इजी टू वॉश. मतलब लॉन्ग टाइम तक इसका जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी रिमेन सेम. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इजी टू मेकिंग ड्रेस मटीरियल. अब ये पोलिस्टर का ईजिली आप ड्रेस बना सकते हो. नेक्स्ट इज टेरिलिन. टेरिलिन इज़ अ वेरी पॉपुलर मटेरियल. इट कैन बी ड्रॉन इन टू यान. यान आपने देखा ना, बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल मिल होती है दे आर यूजिंग यान्स. वो जो यान का जो मटेरियल होता है दैट इज़ मेड अप फ्रॉम टेरिलिन. ओके, लास्ट ऑफ दिस पोलिएस्टर PET. PET यू वुड हैव सीन, आपने नहीं सुना होगा मे बी. PET का फुल फॉर्म है पॉलीथीन टेरेफिथैलेट. ये इतना फेमिलियर है कि इट इज़ मेड अप, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स. अब आपने प्लास्टिक बॉटल्स अगर कभी नहीं देखे हो सो यू हैव टू ऑब्जर्व नाउ, देयर इज समथिंग रिटन ऑन द बॉटम साइड ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल PET. तो ये जो PET जो प्लास्टिक मटेरियल्स है दैट इज मेड अप फ्रॉम PET. गॉट इट? लास्ट ऑफ दिस सिंथेटिक फाइबर इज एक्रेलिक. एक्रेलिक सेम अगेन आपने नाम सुना होगा. एक्रेलिक इज ऑल्सो सीम्स लाइक अ वूल. वूल इज अ वेरी एक्सपेंसिव बट एक्रेलिक इज नॉट. वी आर यूजिंग टू वियर स्वेटर एंड यूज सॉल्स. या तो उसको ब्लैंकेट बनाने में हम एक्रेलिक यूज़ कर दो. मैनी ऑफ दिस नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर. जैसे कि वूल है, आपके स्वेटर्स होते हैं, वो वूल में से नहीं बनता, वो एक्चुअली एक्रेलिक में से बनता है. दैट इज़ अ समथिंग डिफरेंट. ये जो एक्रेलिक है इज प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ये बाय डूइंग सम केमिकल प्रोसेस एक्रेलिक बनाया जाता है. दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. जैसे कि वूल की बात की, वूल इज़ अ नेचुरल सोर्स बट वो एक्सपेंसिव है. दैट्स वाई बिहाफ ऑफ वूल एक्रेलिक इज बीइंग यूज्ड. इज दैट क्लियर? लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो बट ऑब्वियस है सिंथेटिक फाइबर है इट्स चीप एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर बहुत एक्सपेंसिव है, उसका जो लाइफ ड्यूरेबिलिटी दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. सिंथेटिक फाइबर इज़ वेरी इजी टू वॉश, इसको बार बार प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं. एंड इट इज़ अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर. देयर आर मल्टी कलर, हर कलर में ये अवेलेबल है. ओके, last but not least disadvantages of synthetic fiber. Students, is there something on earth जिसका disadvantage ना हो? Advantages as well as disadvantages तो है. तो क्या disadvantages है? It catches fire easily. आपने रेयन पहनो, नायलॉन पहनो, that time you are not supposed to cook क्योंकि वो फायर्स को easily कैच कर लेगा. And melt on heating, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो. जैसे ही फायर लगेगा इट विल बी ईजीली मेल्टेड. सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल वाइल वियरिंग दिस. प्लास्टिक्स टॉपिक्स वी विल कवर नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.